وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ منگل یا بدھ تک نئے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نئے آرمی چیف کا نام بھی سامنے آ جائے گا اور 29 نومبر کو تقریب بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ منگل یا بدھ تک نئے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا اور جو بھی نام ہوا اس پر عسکری اور سیاسی قیادت کا مکمل اتفاق ہوگا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے نئے آرمی چیف کا نام آ جائے گا اور آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل پیر سے شروع ہو جائے گا، جبکہ اسحاق ڈار کی صدر سے ملاقات میں اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فیصلہ اتحادیوں کی مشاورت کے بغیر نہیں ہو رہا اور سسٹم میں فوج کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جبکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو ان کو عزت دیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ جو نام سمری میں آئیں گے ان میں سے ایک پر اتفاق ہوگا، جبکہ اتحادیوں میں اختلاف کی خواہش عمران خان کی ہو سکتی ہے مگر یہ سچ نہیں۔ تو عوام کا بھی پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنی قوم کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ ہم اب ایک جاگی ہوئی قوم دیکھ رہے ہیں، باشعور قوم، اور یہ جو مارچ ہے قوم سمجھ گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو 1947 میں ہم آزاد ہوئے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقی طور پہ آزاد ہے۔ اور پھر سے میں بتا دوں کہ حقیقی طور پہ ایک قوم کیسے آزاد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس قوم کے فیصلے اس ملک میں ہوتے ہیں۔ کوئی بیرون ملک کی کوئی طاقت، کوئی سپر پاور وہ اس ملک کے فیصلے نہیں کرتی۔ اپنے ملک کے لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ملک کی بہتری کے لیے، عوام کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اور پھر میں مثال صرف دیتا ہوں کہ اگر ہمیں روس سے سستا تیل ملتا ہے تو اگر ہندوستان سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے، جب آپ سستا تیل خریدتے ہیں تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے ملک میں۔ تو صرف اس لیے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں مہنگائی کا، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کوئی ہمارے سے بڑی پاور ناراض نہ ہو جائے۔ یہ غلامی ہے۔ آزاد قومیں اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتی ہیں۔ اور دوسری چیز، اصل میں انسان آزاد انصاف کرتا ہے۔ انصاف یعنی قانون، جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے انصاف دے کے، کیونکہ انصاف جب ملتے ہیں تو لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں۔ حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، ہر پاکستانی، کوئی بھی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ جو تھانہ، کچہری، پٹواری کی سیاست پاکستان میں اس لیے ہے کہ کیونکہ لوگوں کو نہ پٹوار خانے میں انصاف ملتا ہے، نہ تھانے میں ملتا ہے، نہ کچہریوں میں ملتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ایم این اے کو ڈھونڈتے ہیں، ایم پی اے کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمیں انصاف دینے کے لیے۔ کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر جدھر حقیقی آزادی ہے وہاں کسی کسان کو، عوام کے نمائندے کو، مزدور کو، اس کو کوئی لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ جا کے مجھے جب تک مجھے ایم این اے ملے گا، مجھے ایم پی نہیں ملے گا، مجھے انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے وہ انصاف دیتا ہے۔ اور اسی لیے میں آپ سب کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ کیوں پاکستانی اتنی مشکلیں کاٹ کے جاتے ہیں ملک سے باہر۔ چکوال میں تو نہیں، لیکن گجر خان کے کئی لوگ ہیں جو میں باہر ملا ہوں، یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، وہ کیوں جاتے ہیں باہر؟ اور مشکلوں سے جاتے ہیں، کیونکہ ادھر ان کے جو ملک کا نظام ہے وہ، کیونکہ وہاں انصاف ہے اور وہاں انسانوں کی حقوق کے تحفظ ہے، تو جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کو محنت کا پھل ملے گا۔ یہ نہیں کہ وہاں کوئی پیسے لوگوں کو بانٹ رہا ہے، وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا۔ اور جو تیسری چیز کہ جو تجارت کرنے جاتے ہیں، مثلا کوئی سرمایہ کاری کرنے جاتا ہے، کوئی بزنس کرنے جاتا ہے، ادھر ان کو یہ اعتماد ہے کہ ان کی جو بزنس ہے وہ اس کو چلانے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، رشوتیں نہیں مانگی جائیں گی، سرکاری محکمے ان کی زندگی مشکل نہیں کریں گے جب تک وہ پیسے نہیں دیتے۔ اور اسی لیے وہاں سرمایہ کاری زیادہ ہے،
वहां खुशहाली ज्यादा है, वहां रोजगार ज्यादा है, क्योंकि वहां लोगों के हकूक की हिफाजत है। तो इंसाफ होता है तो खुशहाली होती है। तो ये आप सब समझ जाएं कि ये जो हमारी हकीकी आजादी की तहरीक है, इसका सबसे बड़ा मकसद यह लोगों को आजाद करना, इंसाफ देके, और इंसाफ देके खुशहाल करना, रोजगार देना। यानी वो मुल्क जिधर सरमायाकारी शुरू हो, जिधर कारखाने लगे, जिधर किसानों की मदद हो, और मैं किसानों के ऊपर फिर से आखिर में बात करूंगा। लेकिन जब तक एक मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जब तक एक मुल्क में ताकतवर और कानून के कमजोर के लिए एक कानून नहीं बनता, तब तक लोग आजाद नहीं होंगे। और मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर 50 साल से वो आदमी जिसको ये कौम सबसे ज्यादा जानती है, किसी आदमी को इस मुल्क में 50 साल से पाकिस्तानी कौम नहीं जानती मेरे अलावा। क्रिकेट के जमाने से लोग मुझे जानते, और मैं सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। अगर मैं अपनी एफआईआर नहीं कटवा सकता, और एफआईआर इसलिए नहीं कटवा सकता क्योंकि वो ताकतवर लोगों के खिलाफ है, और मेरी अपनी हुकूमत है पंजाब में, पुलिस पंजाब की पंजाब हुकूमत के नीचे है, उसके बावजूद वो एफआईआर नहीं काट रहे। तो मैं ये इसलिए आप सबको कह रहा हूं कि अगर मेरे से ये हो सकता है तो आम आदमी से क्या होता होगा। क्यों यहां थाना इतनी बड़ी चीज बन चुका है पाकिस्तान में? क्यों पॉलिटिक्स के अंदर जब भी एमपीए या एमएनए आता है तो सबसे पहले अपना थानेदार रखवाने की कोशिश करता है? क्यों पहले अपने पुलिस वाले रखवाने की कोशिश करते हैं? क्यों बाहर के मुल्क में ऐसे नहीं होता? क्यों यूरोप और बरतानिया में ऐसे नहीं है? क्योंकि वहां उनके निजाम के अंदर इंसान कोई हकूक की हिफाजत है। इन चाइना, उनमें से इन अमंग्स दी फर्स्ट लीडर्स का जो एक बायलैटरल दौरा है, वो हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का इंटरेक्शन होता है, जिसमें आप सबको पता है, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई थिंक इट वाज 16-17 जो हमारा अग्रीमेंट्स है, उस मुलाकात के बाद उन पे साइनिंग किया गया। मैं ना सिर्फ अपना ऑब्वियसली ट्रेडिशनल हमसाया मुल्क का जो दोस्ती है और जो साथ है उस पे काम किया है, लेकिन जो हमारा एक और तारीखी दोस्त रहा है पाकिस्तान का, वो अमेरिका रहा है। और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है वो भी तारीखी है। जो हमने मिल के मेहनत किया है, मिल के काम किया है, तो दोनों ममालिक ने काफ़ी कुछ हासिल किया है। और तारीख हमारा गवाह भी देता है कि जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दूरी पैदा होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन में, हमारा कोऑपरेशन में कमी पैदा होता है, तो दोनों ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा होते हैं। हमने जैसे ही ये ओहदा संभाला तो हमारा वन ऑफ आवर फर्स्ट जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस रहे थे वो सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ रहा, जिसमें हमारा बहुत ही एक्सटेंसिव और कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग हुआ, जिसमें मैं सेक्रेटरी ब्लिंकन का बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। उसको एक अंडरस्टैंडिंग था एक कि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से, जिस अंदाज से हिस्टोरिकली हमारा एंगेजमेंट रहा है, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव और स्पेसिफिक रहा है, और हम उस एंगेजमेंट को दोनों ममालिक के मफाद के लिए, दोनों ममालिक की मीशत के मफाद के लिए एक्सपैंड करना चाहते हैं, और उसी थॉट के साथ हम आगे बढ़े हैं। उसके बाद हमारा इंटरेक्शन जो रहा वो ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक फूड सिक्योरिटी पे जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, और उसमें भी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उस पर हमने बहुत तफसीली मीटिंग और इंटरेक्शन रखा, जिसके बाद हमने ना सिर्फ बातों में मगर अमली तौर पे। और इसी बहरूपिये की बात मैं आप लोगों से कर रही थी, जो झूठ बोलकर भेस बदलता है और आवाम को और उन लोगों को जो इसकी बात सुनते हैं उनको भेड़ बकरियां, बेवकूफ और पागल समझता है। एब्सोल्युटली नॉट गुलामी, हकीकी आजादी। और अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये डरते हैं कि सुपर पावर इनसे नाराज ना हो जाए, और यही शख्स जिस वक्त
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने लगती है तो कहता है मैं मुल्क बंद कर दूंगा। स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराता है। साइफर जो खत आता है खुद कहता है कि इसके साथ खेलना है। उसके बाद असेंबली तोड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि इन्होंने गलत असेंबली तोड़ी, इन्होंने आइन शिकनी की, स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, वुज़रा से कराई, सिर्फ इक्तदार के साथ चिमटे रहने के लिए। और फिर उसके साथ 6 महीने एक मुहिम चलाता है। उस मुहिम के अंदर आर्म्ड फोर्सेस, अदालतें, मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, ये सारी गर्दान करता है। मुल्क को आग लगाने की बात करता है, मुल्क को तकसीम करने की बात करता है, और उसके पीछे उस साइफर के साथ मुल्की मफादात को बेचने की बात करता है कि इसके साथ खेलना है। और अभी मौसूफ फॉरेन पॉलिसी पे गुफ्तगू कर रहे थे, उसका भी मैं बताती हूँ। फॉरेन पॉलिसी का जनाजा जो निकाल कर गए हैं 4 साल, उसके ऊपर भी मैं भी आती हूँ। उसके बाद ना सिर्फ वफाक में ये करता है बल्कि पंजाब में भी यही करता है। आइन शिकनी कराता है, स्पीकर से कराता है, डिप्टी स्पीकर से कराने की कोशिश करता है, गवर्नर से कराता है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो रही थी। और आज जिस वक्त अमेरिका से माफिया मांगने, तरले मिनते की बातें करते हैं तो कहते हैं इट इज ओवर एंड इट इज बिहाइंड मी। ये शख्स एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला शख्स। मुझे तो तरस आता है जिन्होंने अपनी गाड़ियों पे वो स्टिकर लगाए थे एब्सोल्युटली नॉट के और की आजादी के, उनको तो मशवरा दे दें कि स्टिकर कौन सा लगाना है। आप इमरान खान साहब, इट इज नॉट ओवर एंड इट इज नॉट बिहाइंड अस, इट इज इन फ्रंट ऑफ अस and you will have to answer. It is absolutely yes now, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये तमाम बयानियां, हकीकी आजादी का शोर वो चोर मचा रहा था जिसने हरम शरीफ की जो अक्स था उसकी घड़ी कौड़ियों के दाम बेची। अवाम के सामने मदीना की रियासत बनाने की बात करते हैं, कानों के अंदर इस्लामिक टच देने की बात करते हैं, और पीछे दरवाजे से वारदातें डाल के तोशा खाना में दुकान लगाई हुई थी और वहां तोशा खाना की घड़ियों की गलत इवैल्यूएशन करके उनको खरीदे बगैर बेच के, ये घड़ी जो इन्होंने बेची इसको खरीदने के पैसे तोशा खाना में जमा नहीं कराए थे जिस वक्त ये घड़ी बेच रहे थे। हमारी घड़ी तो हमें वक्त बताती है, इमरान खान की घड़ी ने इमरान खान की औकात बताई है। और आप 38 घंटे हो गए आज। अगर आपकी कानूनी मुशावरत बात, आप यूए की अदालत और यूके की अदालत क्यों जा रहे हैं? आप रसीदें दे दें। आप इतना जो वकील, वो भी पैसे जो आपने यहां से लूटे हैं वकीलों की उस पे लगाएंगे फीसों पे, तो आप एक काम करें, आप यूए की अदालत और आप यूके की अदालत क्यों जा रहे हैं? एफआईए में केस है, आज सुना है मैंने, नैब में शायद केस चला गया है तोशा खाना का, और उसको भी छोड़ें। अभी आप जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, वहां बैठ के दिखाएं अवाम को कि जी ये रसीदें हैं, ये मैंने घड़ी वैल्यूएशन कराई है, ये मैंने घड़ी बेची है, इस शख्स को बेची है, साथ उस शख्स को बताएं, मामला खत्म। क्योंकि आपने घड़ी चोरी की, क्योंकि उस वक्त आपने तोशा खाना में पैसे जमा नहीं कराए थे, आपने उमर फारूक को घड़ी बेची। आपके हैंडलर्स ने, जिनका नाम शहजाद अकबर साहब है और फरा गोगी साहिबा है, वो घड़ी लेकर गए, उन्होंने वहां उसका सौदा किया, वहां निगोशिएशन की। उसके बाद वो जो घड़ी की मालियत के पैसे जो निगोशिएट हुए आपके हैंडलर्स ने किए, उसको आप कैश की सूरत में चार्टर्ड प्लेन के जरिए पाकिस्तान मनी लॉन्डर करके आए थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने चंदे के पैसे मनी लॉन्डर किए फॉरेन फंडिंग के जरिए, जिसका आपने आज तक जवाब नहीं दिया। अपने पे इल्जाम लगे तो कहते हो मैं यूएई और यूके जाऊंगा,
दूसरों पे झूठे इल्जाम लगाकर उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा, और आज जो तबसरा कर रहे थे चोर चोर का, तो 4 साल आपकी हुकूमत थी। आपने इन सबको जेलों में डाला था। आपने न सिर्फ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बल्कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत, सबको जेलों में डाला, उनके बच्चों को जेलों में डाला, उनकी बेटियों को जेलों में डाला, उनकी बहनों को जेलों में डाला, 40-40 साल का हिसाब मांगा, और आपके ही दौर ने अदालतों ने उनको बेल्स दी, आपके अपने दौर में। क्योंकि नैब, आप अभी कह रहे थे नैब मेरे पास नहीं है, आपके पास नैब नहीं था, आपके पास नैब की वीडियो थी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, जिनके कब्जे से असला और बारूदी मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। 2 रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 1 दहशतगर्द मारा गया था। पाकिस्तान के वाने बाला के चेयरमैन सादिक संजरानी ने मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट से तहरीके इंसाफ की नाराजगी बरकरार है। PTI सेनेटर्स और चेयरमैन सेनेट के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें इनसे अपने ओहदे से इस्तीफा देने पर मुशावरत हुई। जराए ने बताया कि PTI की जानिब से चेयरमैन सेनेट पर अपने ओहदे से मुस्ताफी होने पर जोर दिया गया और इन्हें पैगाम दिया गया कि अगर इस्तीफा ना दिया तो सेनेट में तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी। उन्होंने जवाब दिया कि मुस्ताफी नहीं होऊंगा, आप तहरीके अदम एतमाद ले आए, मैं मुकाबला करूंगा। चेयरमैन सेनेट की सदर आरिफ अलवी से ऐवान सदर में भी मुलाकात हुई थी, जिसमें सदर मुमलिकत की जानिब से इन्हें इस्तीफा देने पर जोर दिया गया। जराए का कहना है कि PTI सादिक संजरानी के सेनेट में किरदार से खुश नहीं है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन APEC के सरबराही इजलास में शरीक हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 21 मेंबरान पर मुश्तमिल तंजीम के सरबराही इजलास में सऊदी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। सऊदी वली अहद थाई वज़ीर आज़म की दावत पर थाईलैंड के सरकारी दौरे पर है। थाईलैंड वज़ीर आज़म ने रवां साल जनवरी में मुमलिकत का दौरा किया था। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से APEC के सरबराही इजलास के साइड लाइन पर सिंगापुर के वज़ीर आज़म, ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन और फ्रांसीसी सदर ने मुलाकात की है। सऊदी वली अहद ने इंडोनेशिया के सदर और फिलिपाइन के सदर से भी मुलाकात की। सऊदी वली अहद और सिंगापुर के वज़ीर आज़म की मुलाकात के दौरान सऊदी अरब के सिंगापुर के साथ ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें जदीद खतूत पर इस्तवार करने के तरीकों और बाहमी ताउन की नई जहतों का जायज़ा लिया गया। APEC का क़याम मुआशी इंज़माम और ताउन के फ़रोग़ के लिए अमल में लाया गया था। APEC दुनिया की 38% आबादी, 62% मजमूई कौमी पैदावार और 48% तजारत की नुमाइंदगी करता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने G20 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद जनूबी कोरिया का दौरा किया था। फीफा की जानिब से टूर्नामेंट के आगाज से 2 दिन कबल अपनी पॉलिसी में तब्दीली के बाद कतर में वर्ल्ड कप के 8 स्टेडियम्स में शराब की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुस्लिम मुल्क में शराब की फरोख्त पर सख्त कंट्रोल होने के बावजूद शराब को स्टेडियम्स के अंदर मुंतखब जगहों पर पेश किया जाना था। टूर्नामेंट में स्टेडियम के कारपोरेट हिस्सों में रहने वाले अब भी शराब खरीद सकेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप इतवार को शुरू होगा, जब कतर और एक्वाडोर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। फीफा का एक बड़ा स्पॉन्सर बडवाइजर बियर बनाने वाली कंपनी एबिनबेव की मलकियत है और इसके पास वर्ल्ड कप में बियर फरोख्त करने के खसूसी राइट्स हैं। मेजबान मुल्क के हुक्काम और फीफा के दरमियान बातचीत के बाद
कतर के फीफा वर्ल्ड कप 2022 के स्टेडियम के अहाते से बियर के सेल पॉइंट्स को हटाते हुए फीफा के परस्तारों के मेले, दीगर परस्तारों के मकामात और लाइसेंस याफ्ता मकामात पर अल्कोहल वाले मशरूबात की फरोख्त पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया गया है। ये बात फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी के एक बयान में कही गई। ताहम बर्ड जीरो की फरोख्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो कतर के तमाम वर्ल्ड कप स्टेडियम में दस्तयाब रहेगा। मेजबान मुल्क के हुक्काम और फीफा इस बात को यकीनी बनाना जारी रखेंगे कि स्टेडियम और इसके आसपास के इलाके तमाम शायकीन के लिए एक पुरलुत्फ, काबिल एहतराम और खुशगवार तजर्बा फराहम करे। फुटबॉल सपोर्टर्स एसोसिएशन ने ज्यादातर शायकीन के लिए बियर की फरोख्त पर पाबंदी के फैसले के वक्त पर तनकीद की। इनके एक तर्जुमान ने कहा, कुछ शायकीन खेल के दौरान बियर पसंद करते हैं और कुछ पसंद नहीं करते, लेकिन असल मसला आखिरी लम्हात का यू टर्न है, जो कि एक वसीतर मसले की तरफ इशारा करता है। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है, हलाल चांदनी चौक, प्लीज आओ इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।